Assalamu alaikum. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. This lecture is for grade 7 for the subject of Geography, lecture number 3, chapter number 3, Introduction to Atmosphere. Before we begin our lesson, students, ensure that you have your geography book, your proper stationery with you. Open your geography book and keep it open. Write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all important points set by the teacher on your book. Tasks. Today's lesson tasks are atmosphere. We will discuss in this chapter about atmosphere, the problem of ozone depletion, the layered structure of atmosphere, difference between weather and climate change over the Earth's surface, significance of ozone layer, causes of ozone depletion and measures to overcome. Now let's start. Atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere is surrounding our earth from all sides in the form of a cover. Atmosphere ने हमारी अर्थ को चारों साइड से कवर किया हुआ है. Due to the gravitational force of earth, atmosphere is attached to earth from all sides. Gravitational force की वजह से अर्थ पे जो gravitational force है जिसकी वजह से हम अर्थ पे चल पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ना कि हम ज़मीन पे चल पा रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स चल पा रहे हैं, सारा सर्कल चल रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के साथ अटैच्ड है चारों साइड से, फ्रॉम ऑल साइड्स. द लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ इज़ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर. और हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल आर ड्यू टू this atmosphere. Atmosphere is composed of 3 basic components. Atmosphere के 3 basic components हैं: regular gases, variable gases, pollutants. These are mostly found in the lowest part of atmosphere. और ये तीनों के तीनों elements atmosphere के सबसे lowest part में present होते हैं. Nitrogen and oxygen. Regular gases. Regular gases, atmosphere is a combination of many gases. These gases are directly or indirectly necessary for the survival of atmosphere. Atmosphere जो combination है different gases का. Some gases are heavy, some gases are light, some gases are regular. Atmosphere is actually combination of all these gases. These gases affect the earth, affect our planet, affect the atmosphere and survival of human beings, animals, plants on the earth, directly or indirectly. Means regular gases are very important for the survival of life on atmosphere on earth. About 99% of atmosphere consists of 2 gases, nitrogen and oxygen, and the amount of other gases is only 1%. Nitrogen, oxygen. Atmosphere is made of about 78% of nitrogen and 21% of oxygen. Importance of nitrogen. The fertility of soil depends on nitrogen. This gas is necessary for the growth of plants. It also helps in controlling fire. जो अर्थ सॉइल की फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मीन्स कि सॉइल पे जितने भी प्लांट्स हैं कि सॉइल में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने प्लांट्स, कितनी क्रॉप्स को ग्रो करवा सकती है, और कितनी कैपेसिटी के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से, या फिर सारे प्लांट्स वीक हों, उनमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो, दूसरे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो. नो, फर्टाइल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें सब के सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इतनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि उस पर जो प्लांट है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके और फिर अपना फ्रूट, वेजिटेबल प्रोवाइड कर सके. जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कौन सी गैस पे डिपेंड करती है? नाइट्रोजन पे. दिस गैस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये गैस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट में जो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, वो अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी. इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फायर. और नाइट्रोजन फायर को कंट्रोल करने में भी हेल्प देती है. अगर कहीं आग वगैरह लग जाए तो नाइट्रोजन जो है इसकी हेल्प से उस फायर पे कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन.
Oxygen is necessary for life. As you know all, oxygen is very important gas because it is the life gas of all living organisms, humans, especially humans. When we breathe, we absorb oxygen in our body. जब हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को absorb करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं. This gas interacts chemically with other elements immediately. और जो ये गैस है ऑक्सीजन, इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये बाकी सब एलिमेंट्स के साथ फ़ौरन जल्दी से इंटरेक्ट कर लेती है केमिकली. इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड, और ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और फिर हमारे ब्लड से हमारी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. इट गिव्स अस एनर्जी फॉर बर्निंग आवर फूड. हमारे फूड को बर्न करने के लिए, फूड को पकाने के लिए, कुक करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दिस गैस. ज़मीन पे जो ज़िंदगी का बका है वो इस गैस के बगैर नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि ये लाइफ गैस है ह्यूमंस की, एनिमल्स की. ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. और जितने भी टाइप्स के एनर्जी रिसोर्सेज हैं सबको बर्न करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. लाइक अब कार्बन है, जो कोल है, कोल प्योर कार्बन होता है. जब हम कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कोल है उसके साथ रिएक्ट करता है और फिर इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. इस वे में जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करती है. Now comes to the variable gases. What are variable gases? No one can deny the importance of variable gases in atmosphere. कोई भी एटमॉस्फेयर में जो वेरिएबल गैसेस की इंपॉर्टेंस है, इनकी अहमियत है, इनसे इनकार नहीं कर सकता. वेरिएबल गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड. वेरिएबल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, वाटर वेपर्स और ओजोन. कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन अदर गैसेस. और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब गैसेस की निस्बत हैवी होती है. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. पिछले 200 सालों में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 25% इंक्रीज हुई है. द बर्निंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज. अब जो भी एनर्जी सोर्सेज बर्न होते हैं जैसा कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. और जब स्मोक प्रोड्यूस होगी, इसके रिजल्ट में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो भी राइज हो रहा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन. क्यों? क्योंकि इन्हीं गैसेस के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की वजह से और अर्थ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है. ये ग्लोबल क्लाइमेट को भी इफ़ेक्ट करती है. जब ग्लोबल क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करेगी तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग होगी. जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन की डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगी और उससे अर्थ पे टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा. जो दूसरी वेरिएबल गैस है ओजोन. ओजोन का केमिकली फॉर्मूला है O3. एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है 17 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस से प्रेजेंट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, water vapors, ozone. Importance of carbon dioxide. Carbon dioxide is necessary for life. This gas interacts with other gases and makes carbohydrates. Carbon dioxide बहुत इंपॉर्टेंट गैस है लाइफ के लिए क्योंकि ये प्लांट्स की लाइफ गैस है. ये दूसरी गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है. दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स. And you know that carbohydrates are very necessary for the life of plants, animals, humans, because we daily take carbohydrates in the form of food. Then these carbohydrates gets into our body, then provide us energy to do many tasks. Carbon dioxide absorb heat and moderates the temperature. कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर से अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर को मॉडरेट रखती है. इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन. ओजोन स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ. जो ओजोन है ये हमारी अर्थ से 17 to 50 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होता है. ओजोन का जो फंक्शन है वो ये है कि सन से जो हार्मफुल गैसेस आती हैं, ओजोन ने उन गैसेस को फिल्टर करना होता है ताकि वो हार्मफुल गैसेस ज़मीन पे ना पहुँचे और जो ज़मीन पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म ना करें. ओजोन इन गैसेस की जो सन से आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको फिल्टर करती है. इफ़ ओजोन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट नहीं होगा तो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन पे पहुंचेंगी और ज़मीन पे लाइफ को इम्पॉसिबल बना देंगी क्योंकि बहुत सी डिजीज़ अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होती. स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर, आई डिजीज़, एलर्जीज, these are due to ozone. These are due to ultraviolet rays. Such high energy rays can cause skin cancer, eye diseases. Ozone filters these ultraviolet rays before sending other rays to
अर्थ। नाउ कम्स टू द पॉइंट पोल्यूशन। एयर कंटेन्स पोल्यूशन। जो हमारी एयर है ये पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एयर है। हम साफ़ एयर में सांस नहीं लेते, हम आलूदा हवा में सांस लेते हैं, और इसको आलूदा करने वाले भी कौन है? हम लोग हैं। हमने डिफरेंट एक्टिविटी से, स्मोक से, अननेसेसरी एक्टिविटी से अपनी एयर को पोल्यूटेड कर लिया। एयर कंटेन्स पोल्यूशन, माइन्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर। छोटे पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो धुआं फैक्ट्री से आता है, व्हीकल से आता है, वो उन सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, सल्फर प्रेजेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस गैस। इट कैन काज डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, animals, living organisms. During burning, the smoke particles enters in earth in the form of pollution. जब बर्निंग हो रही होती है, जल रहा होता है कुछ, हम जब कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो स्मोक पार्टिकल्स वहाँ से निकल के अर्थ एयर में जाते हैं और फिर पोल्यूशन का काज बनते हैं। पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी। अब जिन सिटीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलेगा, पोल्यूटेड वो एयर में जाएगा, उस सराउंडिंग्स की एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ, और ये लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट काजेज डिजीज़ ऑफ थ्रोट एंड ब्रीथिंग। यह गले की बीमारियाँ फैलाएगा, गले की बीमारियों की वजह बनेगा और सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी। पोल्यूशन आल्सो कंटेन्स गैसेज विच राइज अप इन एटमॉस्फेयर। पोल्यूशन में वो सब गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को राइज करती हैं और ओजोन गैस को ख़त्म कर रही हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज़ डिक्रीजिंग। इसी वजह से ओजोन की अमाउंट जो है वो कम हो रही है। डस्ट पार्टिकल भी अर्थ सरफेस से फ्लाई करते हैं और एयर में एंटर हो जाती हैं, और इनकी क्वांटिटी यूनिफॉर्म नहीं है। देयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर इन डेजर्ट्स एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिड एरियाज़। और सहराओं में इनकी क्वांटिटी, वो जगह जहाँ पे थोड़ी नमी प्रेजेंट होती है, ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं, उनकी निस्बत डेजर्ट्स में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। देयर क्वांटिटी इज़ आल्सो लार्ज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। और अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अमंग द वेरिएबल गैसेस, अब वेरिएबल गैसेस में वाटर वेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। वाटर वेपर्स नॉट ओनली ऑब्जॉर्व हीट, वाटर वेपर सिर्फ हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करते, बल्कि ये ट्रांसफ़र करती हैं हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में थ्रू विंड। इफ़ वाटर वेपर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट ना हो तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगी और ना ही बारिश होगी। द सिस्टम ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर वेपर्स। जितनी भी लाइफ का सिस्टम है ये सब डिपेंड करता है वाटर वेपर्स पे। अर्थ अब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सन। अर्थ सन से हीट को अब्जॉर्व करती है। इस हीट की वजह से जो ओशंस का वाटर है और वाटर बॉडीज़ है वो चेंज हो रही है वेपर्स में। कौन से प्रोसेस से? वेपोराइजेशन के प्रोसेस से। द वाटर वेपर्स एड टू एयर, फिर वो वाटर वेपर्स एयर में जाते हैं। उनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स एयर में जाएंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्वांटिटी है जो वाटर वेपर्स की वो भी ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में हाई होगी। अब एटमॉस्फेयर में इनकी प्रेजेंस की वजह से जो हीट की इंटेंसिटी है और कोल्डनेस की जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट रह रही है। और वाटर वेपर्स की वजह से बारिश होती है, क्लाउड्स बनते हैं। जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश कैसे होगी? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। अब एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। किसकी बेस पे? यस, टेम्परेचर की बेस पे। दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, and the last one is thermosphere, troposphere. The layer near the surface of earth is troposphere. जो layer अर्थ के surface के करीब है that is troposphere. It is necessary for all the kinds of living things on earth. और अर्थ पे जितनी भी living things present हैं ये troposphere उन सब के लिए very important है। All activities on earth are due to it. All climatic changes appear in this layer, जैसा कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, विंड, हीट। दीज चेंजेस प्रोवाइड अ मॉडरेट इन्वायरमेंट टू अर्थ। फिर ये चेंजेस अर्थ को मॉडरेट इन्वायरमेंट देती हैं, ना उसे कूल होने देती हैं ज़्यादा, ना उसे हॉट होने देती हैं।
द गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जितनी भी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। द टेम्परेचर इज अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज, अब इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट, एज हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज। It is present about 16 kilometer above Earth's surface. Now comes to the second one, stratosphere. This layer is present above the troposphere. ये troposphere के above present होती है. In this layer, temperature rises with height instead of decreasing. इसमें जो है टेम्परेचर राइज करता है हाइट के अकॉर्डिंग। एट इट्स बाउंड्री, इसके किनारों पे टेम्परेचर रीचेज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बाउंड्रीज पे कितना टेम्परेचर होता है? यस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में सबसे ज़्यादा ओजोन की अमाउंट प्रेजेंट होती है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच लेयर ओजोन गैस इज मच प्रेजेंट, देन द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। Stratosphere, which makes sun rays favorable to environment. Above troposphere, this layer of stratosphere being 16 kilometers and ends at 50 kilometers. Mesosphere, this layer is present above stratosphere. देखें, ट्रोफो सबसे अबव नियर अर्थ के नियर कौन सी लेयर थी? ट्रोफोस्फियर। फिर ट्रोफोस्फियर के अबव स्ट्रेटोस्फियर प्रेजेंट है। नाउ स्ट्रेटोस्फियर से अबव mesosphere present है। इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद हाइट, इस पोर्शन में भी टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता था? हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता था, मगर मेसोस्फियर में टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। बाउंड्रीज पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गैसेज ऑफ एयर में जो गैसेज हैं और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनकी अमाउंट मिनिमम होगी इस लेयर में, और ये लेयर 50 to 80 किलोमीटर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। नाउ कम्स टू द लास्ट वन, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 30 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है और एटमॉस्फेयर की जो फाइनल बाउंड्री है वहाँ तक प्रोसीड करती है। इन दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के इस पोर्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हाइट के साथ। एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर्स द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिकॉर्डेड। अब इन 4 लेयर्स में, एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स में 2 लेयर्स हैं उनका सेम इंक्रीज करने का फॉर्मेट है और 2 लेयर्स का सेम है। ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो हाइट वाइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, मगर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो हाइट वाइज डिक्रीज करता है। यस, और ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर। वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज ओजोन। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है डेट इज ओजोन। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रॉयड नेचुरली। ओजोन नेचुरली प्रोड्यूस होती है और डिस्ट्रॉय भी नेचुरली होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट राइज एंड सेंड अदर रेज टू अर्थ आफ्टर फिल्ट्रेशन। डेट आई स्पीक प्रीवियस डेट द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज फिल्ट्रेशन। ओजोन लेयर का मेनली फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। अल्ट्रावायलेट रेज सन से आएंगी, ओजोन लेयर का काम ये है कि ये उन अल्ट्रावायलेट रेज को और जो दूसरी हार्मफुल रेज हैं उनको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद ज़मीन पे उन रेज को भेजेंगे, सेंड करेंगे। इन दिस वे, इस तरह जो लाइफ है अर्थ पे वो प्रोटेक्ट हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। क्यों? क्योंकि ओजोन उनको फिल्टर कर लेता है। और प्रोटेक्ट कौन करता है? ओजोन प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, आई डिजीज़ काज कर सकती हैं। अगर ओजोन गैस की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए ना, जैसे कि ओजोन लेयर में अब जो है वो डिप्लीशन स्टार्ट हो चुकी है एयर पोल्यूशन की वजह से, इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुकी है कि ओजोन लेयर में होल बन रहा है और उसकी डिप्लीशन हो रही है। अगर इसी तरह ओजोन गैस की क्वांटिटी कम होती रही तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़मीन पे पहुंचेंगी और फिर ज़मीन पे लाइफ को मुश्किल बना देंगी, हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा लाइफ के लिए। डिफरेंट डिजीज़ लगेंगी। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज़ नेसेसरी। इसीलिए जो ओजोन की प्रेजेंस है, इसकी मौजूदगी है, ये इंतहाई अहम है।
काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब क्या वजह है जिसकी वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है? द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम सैटेलाइट हेल्प्स अस इन स्टडिंग ओजोन गैस। सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमें हेल्प करती है कि हम ओजोन गैस को स्टडी करें। द लेयर ऑफ ओजोन हैज़ बिकम थिन एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सी जगहों पे ओजोन लेयर जो है वो थिन हो रही है। यू कैन सी द पिक्चर that cause ozone depletion on your book, page number 31. That how rays are coming from sun, clouds are formed, how smoke comes from the vehicles, industries affect the atmosphere very badly. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर रिडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, सबसे जो मेन रीज़न है ओजोन लेयर की डिप्लीशन में, इसकी रिडक्शन में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFCS गैस, ये मिक्सचर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन का मिक्सचर है। इट कंटेन्स फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। दिस मिक्सचर एंटर्स एटमॉस्फेयर एंड ब्रेक्स द ओजोन गैस। ये मिक्सचर एटमॉस्फेयर में जाता है और ओजोन गैस की ब्रेक डाउन करता है, उसमें डिप्लीशन स्टार्ट कर देता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो डिस्ट्रॉइंग ओजोन गैस, और जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। CFCS इज़ यूज टू कीप रेफ्रिजरेटर कूल। CFCS कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स को कूल करता है और डिफरेंट स्प्रेज में यूज़ होता है। जब रेफ्रिजरेटर से निकलती है हीट, उसमें CFC गैसेज होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और ओजोन की डिप्लीशन की वजह बनती हैं। CFCS इज़ रिलीज फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्ट्रॉयज ओजोन। CFCS गैसेज इन इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं और ओजोन को डिस्ट्रॉय करती हैं। मई टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब हम कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? In the last few years, different countries have taken good steps for the reduction of CFCS and there are better results. पिछले कुछ सालों में कुछ कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं ताकि ओजोन की डिप्लीशन हो सके और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोल्यूशन पे कंट्रोल किया होगा। डेट्स वाई देयर रिजल्ट्स आर गुड। The information about Earth that was collected from National Aeronautics and Space Administration and other sources shown that the depletion in ozone gas has slowed. अब जो इन्फॉर्मेशन इनको स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरी सैटेलाइट से, दूसरी एजेंसी से मिली हैं, उन्होंने बताया है कि जो ओजोन की गैस में डिप्लीशन है, ओजोन गैस की जो डिप्लीशन है वो प्रोसेस कम हो चुके हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस रिडक्शन, अब जो मेन वजह इसकी कमी की वो क्या है? CFCS गैसेस के यूज़ में कमी है, इस पर कंप्लीट बैन। इस वजह से जो ओजोन है उसकी डिप्लीशन कम हो रही है। नाउ अदर गैसेज आर यूज इन प्लेस ऑफ CFCS। अब CFCS गैसेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन लग चुके हैं, इनकी जगह दूसरी गैसेज यूज़ होती है, अल्टरनेटिव गैसेज यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेटर्स में भी, स्प्रेज में भी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज यूज विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन गैसेज। दिस गैस इज लेस इंजीरियस एज कम्पेयर टू CFCS गैसेज। जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये CFCS गैसेज की निस्बत कम इंजीरियस है, कम नुकसान पहुंचाती हैं। लेट इट बी होप, हम उम्मीद करते हैं डेट वी विल सेव ओजोन लेयर, कि हम ओजोन लेयर को सेव करें टिल द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के मिडल तक। दिस इज एंड ऑफ आवर लेसन। थैंक यू।